Hello bachcho, good morning. We have started the lesson Glimpses of India. Part 1 we have completed, A Baker from Goa. Part 2 Kurg we have completed. Today we are going to start Part 3 Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Tea from Assam. Tea from Assam. Let's start. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal is a boy from Assam and he is classmate of Rajveer, and Rajveer lives in Delhi. Pranjal lives in Assam. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. So his father is manager of a tea garden. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during a summer vacation. So Rajveer, who lives in Delhi, Pranjal invited Rajveer to visit Assam. Chaigram, garam chai. A vendor called out in a high-pitched voice. So in the train, chai gram, a vendor was saying this. He came up to their window and asked, Chai Sahab, give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. So everyone was drinking and they also ordered 2 cups and they also drank chai. Chai means tea. Do you know what over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said, do you know that around 80 crore cups of tea are drunk every day? Woo! Exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. So Pranjal again started reading his detective book. Rajveer too was an ardent fan of detective story, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. But at that time he wanted to look outside because outside scenery was very good, very beautiful. How was outside? It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. And the soft green paddy field gave way to tea bushes. It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो बच्चों बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू था. मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है? मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, ग्लैमरस, स्प्लेंडेड व्यू था. अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस. पहाड़ी एरिया था और उसी पहाड़ी एरिया में चाय के बहुत बड़े बड़े बागान लगे हुए थे. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade tree, and amid the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. बीच में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और जो चाय के पौधे लगे थे, चाय के जो बागान लगे थे, वो सब एकदम सही से बराबर कटिंग में लगे हुए थे. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. एक बहुत ही गंदी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं जो है चिमनी से बाहर निकल रहा था. Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly.
राजवीर जोर से चिल्ला, ये देखो यहाँ तो टी गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। लेकिन प्रांजल तो वहीं पैदा हुआ था, तो उसको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. तो प्रांजल ने बताया कि देखो अब आप चाय के देश में आ गए हो। असम जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट वाला, सबसे बड़ा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती जहाँ होती है, वैसा देश असम है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन आप देखने वाले हो। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज ए कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर ने कहा, मैंने टी के बारे में बहुत सारी पढ़ाई कर रखा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। नहीं मालूम कि चाय की खोज किसने किया है, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं। व्हाट लीजेंड्स? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. कहा जाता है एक बार चाइना के जो सम्राट थे, राजा थे, वो पानी गर्म कर रहे थे और कुछ पत्तियाँ उसमें ऐसे गिर गईं, और जब उन्होंने पिया तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल। प्रांजल ने, अच्छा दूसरी कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक इंडियन कहानी भी है। बोधिधर्मा, हमारे जो बोधिधर्मा है, यानी कि गुरु गौतम बुद्ध जी जो हैं, बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कहा जाता है कि वो एक बार जो है मेडिटेशन कर रहे थे, तो मेडिटेशन करते करते उनको नींद आ गई थी। इसको दंड देने के लिए उन्होंने अपने पलकों को, मतलब जो आईलेट्स होते हैं, उसको काट दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ आईलेट्स। कहा तो उन्हीं पलकों से 10 चाय के पौधे जो हैं ग्रो हुए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर ड्रंक बैनिश स्लीप। और इसीलिए कहा जाता है कि जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी नींद गायब करने के लिए ऐसा किया था। इसीलिए टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर रेडेड, एज फार बैक एज 2700 BC। टी सबसे पहले चाइना में पिया गया था, राजवीर ने बताया। राजवीर रहने वाला तो दिल्ली का, लेकिन इसको जानकर जीके उसकी बहुत तेज है। और वो चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया था, और ये कब पिया गया था? 2700 BC में। BC बच्चों समझ रहे हो? ये अभी हम लोग जैसे 2020 में चल रहे हैं, तो 2020 क्या है? AD है। अगर मतलब आज से कितने साल हुए ये, तो आपको इधर वाले साल और उसके बाद उधर जितने हैं, जैसे 2700 वो भी जोड़ना पड़ेगा, और 2020 ये दोनों जोड़ के जितना आएगा, मतलब उतने साल पहले की बात ही बता रहे हैं। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वो ये भी बताता है कि आज जो हम चाय बोलते हैं, या चीनी शब्द जो है, ये सब चाइना, मतलब चाइनीज लैंग्वेज के ही शब्द हैं। टी केम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage। यूरोप में 16th सेंचुरी में आया, वहाँ पर दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बेवरेज के रूप में नहीं। बेवरेज के मतलब डेली ड्रिंक के रूप में नहीं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन जो है मरियानी जंक्शन पहुँच चुका था। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो बच्चों ने अपना अपना लगेज उठाया और उस प्लेटफॉर्म पर उतर आए। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स डेकिया बारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर। तो वहाँ से फिर वो कार में बैठकर और डेकिया बारी गए, जहाँ पर जो है उनके पिताजी पहले से ही गार्डन की देखभाल कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।